Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV's Morning Pulse. Former agricultural economist Ramesh Chand described Prime Minister Narendra Modi receiving the FAO Agricola Medal as global recognition of India's achievement in agriculture, food security, poverty reduction and policy reforms during his tenure. He called it a moment of pride for the country. No, I would say it is a recognition of achievements of India and various policy initiatives taken by Shri Narendra Modi ji during his tenure of now 12 years as Prime Minister of this country. If you look at the past, this award is given to people for extraordinary achievement as a leader in taking country toward some great achievement in the area of agriculture, in the area of food, in the area of poverty reduction, eradication of hungers. So getting this award is a matter of pride for every Indian that a United Nations organization, FAO is a United Nations organization. So they have recognized the contribution of our Prime Minister, mainly in the area of agriculture, food security, nutrition. Sir, in a unique rehabilitation initiative, surrendered women Naxals in Chhattisgarh's Sukma district are rebuilding their lives by working at the Tungal Nature's Cafe, nestled amid the region's dense forests. The new life of these surrendered women Naxals who spent more than 10 years in Naxal operation is now connected to a socially accepted routine job, steady income and a renewed sense of belonging. The cafe, located close to Tungal Dam, has become an example of how rehabilitation efforts in Chhattisgarh's Bastar region are taking shape on the ground. Here, surrendered cadres are not only earning a livelihood but also interacting daily with villagers and visitors, gradually rebuilding trust within communities that were once divided by years of insurgency. Among those working at the cafe are Khuram Rame, Matvi Budri, Muchaki Som, Matkam Poje and Kalmu Paike. In the past, each of them was associated with Naxal groups and had bounties ranging between Rs 1 lakh to Rs 5 lakh too. Currently, the responsibilities of these surrendered Naxal women are far removed from that life. They spent their day preparing food, serving customers, stranding and tending to plants and handling basic accounts. Their work shifts stretch between 8 and 10 hours, for which they receive a monthly salary of Rs 8,000. While the earnings are modest, the women describe the opportunity as a turning point, and for many it is their first experience of financial independence within a peaceful environment. Officials involved in the initiative say the idea is to provide former Naxals with practical skills and stable employment, enabling them to transition smoothly into the mainstream society. The Tungal Nature's Cafe is managed by the Forest Department and was opened in December 2025. It is a part of broader rehabilitation approach that focuses on both economic support and social integration. The concept also draws from individual interests. Several of the women had shown a preference for cooking during their stay in rehabilitation centers and surrendering. Building on that, authorities placed them in roles where they could apply and develop these skills in a real-world setting. Tungal Nature Cafe is not just a workplace, it is also emerging as a tourist attraction. Surrounded by dense greenery and overlooking the calm backwaters of the Sabri River, a tributary of the Indravati, and the site offers a peaceful retreat for visitors. Not just that, but the initiative also brings together people from different backgrounds. Locals, tourists and even families affected by early violence now share the same space, interacting in atmosphere far removed from the tensions of the past. The Bastar region, comprising districts such as Sukma, Bijapur, Dantewara, Kankar, Narayanpur, Godagaon and Bastar, has witnessed a gradual shift in recent years. Alongside security measures, the government has expanded rehabilitation schemes to encourage surrender and provided alternative to those leaving the insurgency. The impact of such effort is becoming visible through initiative skills by this cafe. For the women at Tungal Nature's Cafe, the transformation is already tangible. A life once marked by conflict has now been replaced with routine work, shared responsibilities and renewed aspiration. As visitors arrive for tea and conversation, the cafe quietly narrates a larger story of transition, resilience and the possibility of lasting peace in a region long affected by the violence. सुबह 10 बजे आके शाम 6:30 बजे तक काम करते हैं हम लोग। और पूरे महीने में आपको कितना यहाँ से इनकम हो जाता है, कितना पैसा मिल जाता होगा? हाजिर से ऑप्शन परजेंट से हिसाब से 1 महीना का 8,000 मिलता है। अब पहले में और अब में
आप देखिए न सिक्योरिटी फोर्स का डर है, न ही नक्सलिज्म का डर है, क्योंकि 31 मार्च 2026 को नक्सलिज्म समाप्त हो गया है पूरे देश। अभी भी जनता का जन संघर्ष है ना, इसलिए अंदर जाने के भी डर होता है सर। अभी भी डर है, लेकिन अब खत्म हो चुका है, तो अब उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। और क्या कहना नाम रखा गया? यहाँ का नेचर कैफ़े है सर, कैफ़े का नाम है। हम लोग आत्मसमर्पण के नाम से यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ करता है आत्मसमर्पण जिन्होंने किया है वो लोग भी, और जो लोग जो पीड़ित परिवार से वो भी काम करते हैं? जी, आत्मसमर्पण वाले दीदी लोग भी हैं, और पीड़ित परिवार से जो दीदी है ना, वो लोग सब मिल बांट के यहाँ काम करते हैं। और क्या काम करना पड़ता है, किस तरह का काम है? सर यहाँ पे आके हम लोग जो कैफ़े का साफ़ सफाई करते हैं, पूरा गार्डन एरिया का साफ़ सफाई करते हैं, पानी को पौधा देते हैं और पौधा लगाने का काम भी करते हैं। जैसे कोई आर्डर दे रहा है हम लोग को नाश्ता उस्ता का, वो सब बनाते भी है। यहाँ पे बम्बू बिरयानी है जो, वो भी बनता है। जब आर्डर देते हैं तभी हम लोग बनाते हैं। खाना वाना का भी आर्डर मिलता है जी। जैसे कोई बाहर से आते हैं तो हम लोग को आर्डर देते हैं ना, तभी यहाँ पे खाना वाना बनता है आर्डर देने के ऊपर। कितने घंटे काम करते हैं यहाँ पे आप? यहाँ पे सर हम लोग 10:30 बजे आते हैं। 10 बजे आके कभी 6:30 बजे या 7-8 बज जाता है सर। आर्डर मिलता है तो रात का 8 बज जाता है, नहीं तो 7 बजे तक चले जाते हैं घर। और कितना इनकम हो जाता है महीने में? महीना में हम लोग को 8,000 मिलता है सर। एब्सेंट प्रेजेंट के हिसाब से मिलता है। जो दीदी आती है काम करती है उनका प्रेजेंट डलता है, जो दीदी नहीं आती उनका एब्सेंट डलता है। Meanwhile, Monica Shyam and Manish Ratre, Deputy Superintendent of Chhattisgarh Police, said that the initiative is focused on restoring dignity and self-confidence among surrendered women cadres, as the cafe has become a symbol of transformation in the region. ये वन विभाग के अंतर्गत आने वाला एक टुंगल डैम है जो सबरी नदी पर स्थापित है। इसमें एक टुंगल नेचर कैफ़े है जो दिसंबर 2025 से यहाँ पे संचालित है। इसमें लगभग 10 महिलाएं काम करती हैं जो स्वसहायता समूह हैं उसमें, और इसमें 5 सरेंडर महिलाएं हैं, 3 नक्सल पीड़ित फैमिली से बिलोंग करती हैं और 2 सामान्य फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये मिल के यहाँ पे इस कैफ़े को संचालित करती हैं। ये अपन जब जहाँ बैठे हैं सर, ये पहले टुंगल डैम था, और सर ये दिसंबर 2025 में सर एक नेचर्स कैफ़े नाम से इसको स्थापित किया गया। यहाँ सर वर्तमान में सर जो नक्सल पीड़ित हैं और जो पुनर्वास के हुए नक्सली हैं, आत्मसमर्पण नक्सली, ये दोनों मिलकर सर इस कैफ़े को संचालित कर रहे हैं। और सर इसका मकसद ये है सर कि दोनों साथ रहें, आपसी मतभेद हटाएं और दोनों को रोजगार मिल सके। इस मकसद से सर दिसंबर 2025 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और सर ये सुकमा जिले के साथ साथ जगदलपुर में भी पंडुम कैफ़े नाम से संचालित हो रहा है, और काफ़ी सर लोग आते हैं और यहाँ जगह का आनंद लेते हैं और बहुत उत्साहित होकर सर जगह का विकास भी धीरे धीरे हो रहा है। सर ये जगह सर पहले काफ़ी नक्सल पीड़ित इलाका था सर, चूँकि हम देखते हैं कि सुकमा जो है सर बटालियन का गढ़ हुआ करता था। मारवी हिरमा जो बटालियन कमांडर था सर, उसका गांव यहीं सुकमा जिले में पुअर्ती में है सर, जिसकी यहाँ से दूरी लगभग 70-80 किलोमीटर है। और अभी नक्सलवाद खत्म होने के बाद सर ये जगह बहुत शांत है और लोग इस अच्छा नेचर्स कैफ़े का आनंद ले रहे हैं और काफ़ी शांति से जी रहे हैं सर। Heading on to the next news, where political tensions intensified in the national capital as Congress leaders and workers staged a protest towards the BJP headquarters over NEET UG 2026 paper leak case, accusing the government of failing to protect the future of lakhs of students. The Congress demanded accountability. देखिए 2024 में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा था कि ये नीट का पेपर चोरी हो रहा है, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, आप चर्चा करा लो। इन्होंने चर्चा नहीं कराई क्योंकि पेपर चोर ही ये खुद ही थे। धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी की सरकार में बैठे हुए लोग पेपर चोर थे, तो ये कैसे चर्चा कराते? स्पष्ट हो गए। अब तो इस्तीफा लेके रहेंगे। Former plaintiff in the Babri Masjid Ram Janmabhoomi case, Iqbal Ansari, said Muslims should respect cows and supported stronger protection for them, including declaring the cow as the national animal. He stated that cow sacrifice should not be allowed and alleged that some people misuse the issue to defame Muslims. देखिए, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और सवाल हमारे यहाँ गाय का है। गाय को
गौ माता कहा जाता है। और मुसलमान को चाहिए कि गायों का सम्मान करें। सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि गाय एक ऐसी चीज है कि गाय को लोग गाय माता कहा जाता है। हमारे देश में गौ माता कहा जाता है, तो गायों का सम्मान होना चाहिए। सवाल कुर्बानी का है, गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाय जो है बहुत सीधा जानवर है, इसीलिए लोग और जो है पूज्य है, हिंदू धर्म में पूज्य है। मुसलमान भी उस जो है गाय का सम्मान करते हैं, गाय पालते हैं। गायों को लोगों को चाहिए कि जो है जब सत्कार करें तो गाय का जो है गायों का इतना सम्मान दें कि जैसे जो है हमारा पड़ोसी हिंदू है वो जो है गाय को गाय माता जो है कहता है, तो उनको खुद भी चाहिए गाय माता जो है, गाय को गाय माता कहने में कोई हर्जा नहीं है। गाय माँ है तो रहेगी, माँ रहेगी। और कुछ सवाल कुर्बानी का है, प्रतिबंधित जानवर है, हिंदू हमारे देश का गाय का सम्मान करता है, तो गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाय का दूध फायदेमंद है, घी दवा है, गोश्त खाने के लिए मना किया गया है। ये हमारा इस्लाम मजहब है, पहले से मना करता है। लेकिन कुछ सरफिरे लोग हैं जो हमारे देश के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये सब काम करते हैं। उनको चाहिए कि गायों का सम्मान करें और गायों का एहतराम करें, गायों को चारा खिलावें और कुर्बानी गाय के करीब भी जो है बिल्कुल जो है इस नियत से बिल्कुल न जाए, क्योंकि इस्लाम मना करता है। बड़े बड़े मौलाना से आप पूछ लीजिए, इस पे फतवा भी है कि जो है दूध फायदेमंद है, घी दवा है और गोश्त बिल्कुल मना है। तो इसलिए मना किया गया है कि गाय का सम्मान करें और सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय पशु घोषित करे। ये हमारी भी मांग है और हमारे मुस्लिम समाज की मांग है। जो भी मुसलमान पढ़ा लिखा है वो गाय का सम्मान कर रहा है और करेगा। देखिए, प्रतिबंधित जो भी जानवर हैं, जो भी हमारे देश के राष्ट्रीय संपत्ति में आते हैं और सरकार उनका सम्मान करती है। अगर कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर गाय के साथ अन्याय होता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, विपक्ष का काम यही है कि वो राजनीति करेगा। हम राजनीति नहीं करते, हम चाहते हैं कि धर्म का सम्मान हो और गाय का सम्मान हो। गाय को राष्ट्रीय जो है पशु घोषित करना चाहिए, ये हमारी मांग भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जो है गाय के लिए गौशाला हो, गाय के लिए चारा हो, गाय के लिए सम्मान हो। भाई हम भी चाहते हैं, अगर संत महान जो मांग करते हैं हम भी मांग करते हैं, क्योंकि हम संतों का सम्मान करते हैं। हम अयोध्यावासी हैं, संतों के बीच में रहते हैं। तो संतों के जहाँ संत का सम्मान होगा तहाँ देश में शांति भी रहेगी। तो हम चाहते हैं कि साधु संत का सम्मान होना चाहिए, देश में शांति होनी चाहिए और किसी के साथ भेदभाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधुओं के पास जो है, साधुओं के कुछ पास पहुंचने पे सबके पास जो है पहुंचो तो साधुओं से आशीर्वाद मिलता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। तो हम सबका सम्मान करते हैं। हम सरकार से जो है गाय के लिए यही मांग करते हैं कि सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि हम गाय का सम्मान करते हैं, मुसलमान भी गाय का सम्मान करता है। और जहाँ सवाल जो है कि लोग जो है बहुत से लोग ऐसे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है जहाँ भाईचारा खराब करने का हो वहाँ गायों के साथ अन्याय करते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ ऐसे लोग अन्याय करें उनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। Hussain Dalwai supported the remark made by Iqbal Ansari, saying communal harmony and mutual respect are important in a diverse country like India. He said cow slaughter hurts the sentiments of Hindus, Muslims, and Muslims should avoid cow sacrifice. ऐसा है कि गाय की हत्या करने से अगर हमारे हिंदू भाइयों की जज्बात में ठेस पहुंचता है, उनको अगर दुख होता है, तो मेरे ख्याल से गाय की कुर्बानी करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ इकट्ठा रहते हैं, एक दूसरे को मानते हैं, एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। तो मेरे ख्याल से गाय की कुर्बानी करने की कुछ जरूरत है। बकरी की करो ना, गाय की ही करना चाहिए, ऐसी क्या बात है। Dr. Kulin Vyas said rising temperatures this month have led to a slight increase in patients reporting fever, body aches and waterborne illness such as diarrhea and dysentery. However, he noted that no major heat stroke cases have been reported so far, indicating growing public awareness and precautionary measures against extreme heat.
मैं डॉक्टर कुलीन व्यास, यहाँ CMO 16 सिविल हॉस्पिटल में। सर बताइए, अभी यही मई में गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, इस तरह किस प्रकार के पेशेंट ज़्यादा है और कितना बढ़ा हुआ है एवरेज? हाँ, ये साल के कंपेयर में अभी तो ये मंथ में ही गर्मी पहले से ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमारे यहाँ पेशेंट का इतना फ्लो ज़्यादा नहीं रहा है। लास्ट वीक या लास्ट मंथ की कंपेयर करें तो पर डे 20-25 पेशेंट का इंक्रीज़ हुआ है उसमें, और ज़्यादातर बुखार, बॉडी एक ऐसे ही पेशेंट रहे हैं, और वाटरबोर्न डायरिया, डिसेंट्री ऐसे हैं। हीट स्ट्रोक हम पर्टिकुलर उसकी बात करें ये मंथ में, तो अभी तक ऐसे कोई सीरियस पेशेंट मिले नहीं हैं। इसका मतलब है कि लोगों में इसकी थोड़ी अवेयरनेस भी है और लोग ध्यान भी रखते होंगे। कितना पेशेंट एवरेज आता है और इसको गर्मी के चलते कितना की बढ़ोतरी हुई है? एवरेज पर डे हमारे यहाँ 1800 से 2000 पेशेंट रहते हैं, तो उसके हिसाब से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है अभी तक। On the SIR schedule in Haryana from June 15, Haryana Chief Electoral Officer A. Srinivas said that the Election Commission's house-to-house verification drive will continue till July 14th, while the final electoral roll is set to be published on September 22nd. He said booth-level officers or BLOs will visit homes to distribute enumeration forms in duplicate, assist voters in filing out the application, collect the completed forms and issue receipts. जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, हाउस टू हाउस शेड्यूल जो है हमारे पास 15 जून से शुरू है और 14 जुलाई तक है, और फाइनल पब्लिकेशन जो है 22 सितंबर तक चलेगा। BLOs घर घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म्स दिया जाएंगे, डुप्लीकेट में एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके वापस लेंगे और एक रिसीट करके उनको देंगे, और जहां पर भी एन्यूमरेशन फॉर्म वापस नहीं आते हैं उनका इलेक्टोरल लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा। प्री मैपिंग ये एक्सरसाइज ये है कि 2024 का वोटर लिस्ट और 2002 के साथ मैपिंग हुआ है, उसमें अर्बन एरियाज में देखा जाएगा तो परसेंटेज थोड़ा सा कम है बिकॉज ऑफ राइजिंग इन पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन एंड थोड़ा बहुत एक्सेस टू दी गेटेड कम्युनिटीज़, एंड जितना रूरल एरियाज में गए हम उतना परसेंटेज फतेहाबाद में अराउंड 85-86% भी देखने को मिला है। बट प्री मैपिंग इज जस्ट एन एक्सरसाइज टू जो BLO को हेल्प करने के लिए, बट जो हाउस टू हाउस दोबारा 100% हाउस कवरेज उनको BLO करना पड़ेगा, एंड ये प्री मैपिंग एक्सरसाइज जस्ट टू फैसिलिटेट हिम, दैट्स ऑल। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं होगा बिकॉज क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फेज भी है और एन्यूमरेशन फॉर्म्स आपके पास भी आएंगे, आप फिल करके देंगे और सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। वी हैव गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू डिप्टी कमिश्नर्स, एंड बाय चांस भी आपके पास कुछ नाम छूट भी गया है, यू हैव शेड्यूल में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का भी प्रावधान दिया गया है, और ERO लेवल पे भी होगा और उसके बाद CO लेवल पे, मेरे लेवल पे भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। मेरा सभी लोगों का यही अपील है कि BLO जब भी आपके पास आए एन्यूमरेशन फॉर्म्स लें और एन्यूमरेशन फॉर्म्स फिल करें ठीक तरह से, और सिग्नेचर फॉर एग्जांपल बच्चे घर भी ना भी हो, कहीं और पढ़ रहे भी हों, घर के जो हेड हैं वो भी साइन करके एन्यूमरेशन फॉर्म्स दे सकते हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये इंश्योर करें कि एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करके BLO को वापस देने के कष्ट करें। On the Vande Mataram row, DMK leader R.S. Barathi accused the state governor of ignoring Tamil interests and wanted Tamil Nadu's progress could decline. Recalling the party's long-standing opposition to Hindi imposition, Barathi said the DMK has resisted three-language policy for decades, citing 1965 anti-Hindi agitation. This government has got scant respect for Tamil Thai world. The first incident itself, all the opposition parties raised this issue. In spite of that, it has been repeated. One of the ministers said that in future it will be rectified. But this has not been rectified. Therefore, this goes to prove that they have got no
interest in this issue and they are disregarding Tamil. Now the Tamil Thai Vartha has gone third. Tamil Nadu will definitely in the days to come, in all aspects, economically, educationally, politically, in all respects, I think Tamil Nadu will go to the third or fourth. And because during the tenure of M.K. Stalin, Tamil Nadu was outstanding state, was first in so many aspects in India. Now, the very first day itself, Tamil Thai has gone third. The days to come, Tamil Nadu will be totally ruined. This is the significance of that. We will wait and see what is happening. For the mistakes committed by the people of Tamil Nadu, definitely the Tamil people will hang their head in shame. So will this be continuing in the assembly session also, sir? Because DMK has always fighted in the previous 10 years. Yes, sir. DMK was a fighting bull. Our party, from not today, right from 1938, even before the party was formed, we were against Hindi imperialism and we opposed it. One of the reasons for this DMK to come to power was the 1965 agitation. So, from that day, we have been fighting against Hindi imperialism and imposition in Tamil Nadu, and we have been retaining it. For the last 60 years, there has been 3 language formulas not entered Tamil Nadu. Let us see what is going to happen. See, for the mistake committed by the people of Tamil Nadu, necessarily we will have to face all these consequences. After 1960. That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.